I thought I will prepare well for this interview, but something inside me said, "Karma, तुमसे ये ना हो पाएगा." कभी कभी कोई कोई मिल जाता है बोलते हैं सर एक बात करनी है, मैंने कहा कहिए। यू आर अ बेटर एक्टर देन अ डायरेक्टर। बहुत बुरा। मुझको ऐसा लगता है मेरी अगर मैं मतलब हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी कुछ नहीं हुआ तो मैं बहुत लंबी इनिंग्स खेलूंगा। कंपटीशन है नहीं, बिल्कुल नहीं है कंपटीशन, बिकॉज ये यंग जनरेशन जो है ये भी अब फिल्मों की फिल्में बना रही है। माई यूनिट, आई मीन वी ऑल वर्क टुगेदर। मैं बोलूंगा पेड़ पे डॉली लगा दो, लगा देगा। टूट गया तो नहीं, वो नहीं टूटेगा। नहीं, कुछ हो गया तो ना, गिर गया। वो कभी नहीं हो सकता, वो लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि मैंने कहा है। आपने क्यों कहा है? मुझको वहीं से चाहिए शॉट। आपको क्यों चाहिए शॉट? या तो अगर ऐसा प्रोड्यूसर है जिससे सीधे का आधा कर दो, तो ऐसे प्रोड्यूसर का काम ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर तुमको प्रोड्यूसर चाहिए, तुमको लगता है इसको मैं सेट कर लूंगा, तो और ही ज्यादा इन्फ्लेट करके बजट दो। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ सबको, बॉम्बे हमने बिल्कुल ना आइए, आप लोग अपने जहाँ अपनी जमीन से जुड़े रहिए। अब तो इक्विपमेंट भी सब मिल जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। Editor-in-Chief of East Mojo, Karma Paljor, sat down for a conversation with acclaimed writer, director and actor Tigmanshu Dhulia on the second day of the 9th Brahmaputra Valley Film Festival. Held at Jyoti Chitrapan Film Studio in Guwahati, the conversation was based on the theme inspiring a new generation of storytellers that also witnessed participation from the cinephiles present at the venue. Here's how it progressed. Fantastic evening. Thank you so much, Tigmanshu ji, for coming down, especially for this. We are humbled. That aside, I thought I will prepare well for this interview, but something inside me said, "Karma, तुमसे ये ना हो पाएगा." आप ही बोल दीजिए, कर्मा तुमसे नहीं ना हो पाएगा। नहीं, मैं ये डायलॉग बोलता नहीं मुझसे, उसका मैजिक खत्म हो जाएगा ना। मैं उतने अच्छे अंदाज से बोल नहीं पाऊंगा जितना फिल्म में बोला है, तो मैं वो मैजिक तोड़ना नहीं चाहता। और फिर पैसे लेता हूँ डायलॉग बोलने के। सर वो तो बाद में कर लेंगे। So our dear MC said we want to involve the audience as much as possible. So right from the beginning, I want to do that. Subject is very clear. We need to inspire a new wave of young filmmakers from the Northeast, and we have some, and who we are very proud of. So what I'm going to do is list of topics that we can discuss initially. I want the topics to be driven by the audience. So I'll read out a word, and you'll have to scream on top of your voices if you want me to start that conversation on that point. Okay? So the first word is his life. Of course. No, you have to shout. Nah, yeah, you know. So, option 2, work. हाँ, इसका थोड़ा लाउड है. Sex life. इसका लाउड उतना नहीं है, चलो नहीं पूछेंगे. Tigmanshu Dhulia as an actor. हर्ट हुआ ना आपको? कितना हर्ट हुआ? मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी कोई मिल जाता है, बोलते हैं सर एक बात करनी है, मैंने कहा कहिए। यू आर अ बेटर एक्टर देन अ डायरेक्टर। बहुत बुरा। तो अभी I'll ask you once again. Tigmanshu Dhulia as an actor. अब कम हो गया. थैंक यू। Finally, as a director. Okay, now let's get to the point. First question, as I was walking in, one of our directors, Pallavi, said that I have to ask this question. She asked me to put it in a better way. But I think the first question is the question I'm going to start with. As a director, what is that moment
that you decide, yes, this is it. This is the movie that I want to make and will be great? There are various reasons. It's not just one. See, we all know that cinema is not about 2 talking heads or 3 talking heads. It's a visual medium. So if the story kind of gives me that facility to make visual magic, then that's one reason. Then the other reason is, I mean, you look back at your work, the kind of work you've done, where you've faltered. I mean, I do that all the time. And then you say, okay, this is something which I have not done, but it's still within my playing range. That is one reason. Then I see the kind of films which are coming out. So, okay, if you think you can break the clutter, that's another reason. I think these are the few reasons which kind of makes me go forward. So is it a, very, for want of a better word, is it a very formal kind of scientific kind of a formula that you use to come to a conclusion? Or is there a gut feeling, a director's, an actor's gut feeling that's there that says yes? Yeah, filmmaking is an expensive, it's a very expensive effort. ये पोएट्री लिखना, कहानी लिखना नहीं, कमरा बंद किया, 4 कागज काले कर दिए, उससे नहीं होती. पैसे बहुत लगते हैं. तो like I said, it's a bit of both. Gut, of course, gut feeling तो है ही है. And ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको, ये सारे reasons. दूसरा आपको अपने मालूम है कि जैसे मैं आउट एंड आउट रोम कॉम उस तरह की लव स्टोरी जो कमर्शियल होती है मैं बना नहीं सकता. मुझे मालूम है मैं नहीं बना पाऊंगा. मैं ऐसी पिक्चर देखता भी नहीं, बनाना छोड़ो, मैं देखता भी नहीं ऐसी फिल्में. तो वही बाकी जो जिंदगी देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम, वही बात है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हासिल, द फेमस सीन at the Kumbh, which was shot guerrilla style. Nobody knew that a movie was being shot. When you shot that scene, and I believe at that time that was the largest congregation of the Kumbh, something special was there, and we were following it in the news. When you shot that, you didn't have money. So how did you do it? My moti script was done, a sketchy screenplay was there, and my actors had agreed, Jimmy, Irfan, but I did not have a producer. मैंने climax रख दिया था कुंभ मेले में. वो 2000 में कुंभ मिला था, 124 years वाला. 5 करोड़ लोग थे एक दिन में वहाँ. 5 crores, ऑस्ट्रेलिया की आबादी है पूरी. तो प्रोड्यूसर था नहीं. Some friends got money from home. So we could manage to do the wide shots of the climax first. And then I showed those shots to few producers and eventually I got one. So to all the, future directors and actors here, is it a good idea, and you know that filmmaking is an expensive art, is it a great idea to take a plunge like the plunge you took, knowing that you have an idea, you believe in that idea, but will there be a financial backer or not? Is it a good idea for them to jump in like that? Yeah, for your first you must do it. For पहली पिक्चर के लिए तो खूब लगानी पड़ती है. उसके बाद आपको आपकी पहली पिक्चर से ही पहचाना जाता है हमेशा. तो पहली पिक्चर अगर ऐसी है जिसमें आपको भले ही बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस ना मिले, लेकिन तारीफ हो, तो उसके लिए तो आपको प्लंज लगाना ही पड़ेगा. नहीं तो बाकी रेगुलर आपने कोई फिल्म बनाई जिसके लिए आपको प्रोड्यूसर मिल गया है, आपने देख लिया हो कि all the boxes are ticked, proper budget, then I think it will be an ordinary film. And how important is it for a director to have fantastic relations with the family that you work with, your actors, the cinematographers, because you are moving around. And we always see that there is a clique, one director will have his set of people who he believes in, and that gang will work together and for many films. How important is it? For me, it's very vital.
that I work with a bunch of, with friends. Because I personally enjoy, film के जो भी process होता है, pre-production, shooting, post-production, so I enjoy shooting the most. It's like a picnic for me. We go to a new place, completely small place, outdoor. तो दोस्त रहते हैं, तो वो एक कभी भी किसी को बुला लो, मैं बहुत ज़्यादा प्लान वे में शूट करता भी नहीं हूँ. लोकेशन अच्छी लगी, रुको यहाँ शूट करेंगे. तो उसलिए इस तरह का अगर आपका टेम्परामेंट है, डिसिप्लिन है फिल्म मेकिंग का, देन यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स एंड ऑनेस्ट पीपल विद यू. Even your cameraman and the dolly operators, imaging operators, Steadicam guy. My unit, we all work together. मैं बोलूँगा पेड़ पे डॉली लगा दो, लगा देगा. टूट गया था? नहीं, वो नहीं टूटेगा. नहीं, कुछ हो गया था, गिर गया पेड़ से. वो कभी नहीं हो सकता. वो लगाएगा. क्यों लगाएगा? क्योंकि मैंने कहा है. आपने क्यों कहा है? मुझको वहीं से चाहिए शॉट. आपको क्यों चाहिए शॉट? ये तो एक नेवर एंडिंग बहस है. मेरे कहने का मतलब कुछ और था, आपको समझ जाना चाहिए था. नहीं, मुझे थोड़ा जर्नलिस्टिक साइड से लगा ना कि किसी को रिस्क है, कोई पेड़ से गिर जाए. मेरा कहने का मतलब है कि मेरी यूनिट जो है, मैं खुद अपनी यूनिट के लिए वी वर्क एज अ फैमिली, जैसे लड़की की शादी होगी. हाँ, so that is the message that I wanted to get out for all you young filmmakers, that that is the team that you should inspire to build. Somebody वो चने का झाड़ में भी जो चढ़ जाए, तब उन लोगों के साथ आप करने में. हाँ, वो बिकॉज यूनिट आपको रिस्पेक्ट इसलिए करती है बिकॉज वो आपको देखती है कि जितना काम हम कर रहे हैं, लाइट बॉय कर रहा है, उतना ही काम डायरेक्टर भी कर रहा है. मैं मॉनिटर के सामने बैठ पिच नहीं बनाता, सबसे आगे मैं ही चलता हूँ, फिर मेरी यूनिट पीछे चलती है हमेशा. अब मैं बहुत स्टूडियो में बैठ के पिक्चर नहीं बनाता हूँ. मैं रियल लोकेशन मुझको पसंद है, तो उतनी जहाँ फैसिलिटीज नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसी का मजा है. क्यों? ये मेरी फितरत है, इसलिए. क्यों है आपका फितरत है? अब वो तो माँ बाप से पूछना पड़ेगा मुझको. ये ऐसा तो नहीं कि मुंबई बहुत महंगा हो गया इसलिए आप देहात साइड में जा रहे हैं, थोड़ा कॉस्ट भी कम हो जाता है? नहीं, बॉम्बे में शूटिंग करने में मुझे मजा नहीं आता. स्टूडियो के अंदर बैठ के नहीं अच्छा लगता. Because that feel is not there. हाँ, There's a certain rawness to your movies. हाँ, yes. वो एजीनेस जो है, वो रियल लोग एक्ट. देखिए, एक्टर के लिए भी, जैसे कि हमारे नाट्यशास्त्र में कहा है कि एक आंगिकम अंग से करते हैं, वाचिकम बोल के करते हैं, एक आहार्य अभिनय भी होता है, जो कि कॉस्ट्यूम से और मेकअप से एक्टर को हेल्प मिलती है. उसी तरह मुझे लगता है लोकेशन भी एक्टर को है. अगर आप रियल लोकेशन पे जाओगे, परफॉर्मेंस 100% बेटर होगी बजाय स्टूडियो के अंदर. आजकल के एक्टरों में और पुराने एक्टरों में क्या फर्क है? आजकल के एक्टर ज़्यादा डिसिप्लिन है, टाइम पे आते हैं, लाइनें याद होती हैं. मैं आपने कहीं इंटरव्यू में बोला था कि 1 मिनट में भूल जाते हैं कि आपने वो तो ये एकदम अभी जो बच्चे हैं, हाँ, वो उनके साथ प्रॉब्लम है. उनके साथ प्रॉब्लम है बिकॉज मैंने आप ही लोगों को शायद बता रहा था, आज हम लोग बात कर रहे थे कि आई जस्ट मेड अ शो कॉल्ड गर्मी अगेन ऑन स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऑफ टुडे. तो वो बच्चे ही थे उसमें, सब एमए फर्स्ट ईयर के, सब 22-23 साल के बच्चे, थोड़ा थोड़ा थिएटर किया. इस जनरेशन का कंसंट्रेशन लेवल बहुत खराब है, ऑलमोस्ट जीरो है. आप उनको डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट करिए कि भाई कमरे में आना है, यहाँ पे जाना है, टेबल पे फोन रखा है, फोन उठाना है, बाहर चले जाना है, इतना सिंपल. ओके, रेडी रेडी रेडी, 8 मिनट हुए, बंदा भूल गया क्या बोला है उसको, 10 सेकंड के अंदर भूल गया. और ये बहुत बार हुआ, मतलब कई 100 बार हुआ मेरे साथ. वर्किंग विद दोस बंच ऑफ एक्टर्स. आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन. और ये तो एक्टिंग है, पता नहीं और किस किस लेवल पे इफेक्ट कर रहा होगा ये. अच्छा, I also think you said in one of those, it's because the mobile phones, ये जो आजकल रील देखते हैं ना, इससे पागल हो जाते हैं लोग, and then you're distracted, so your spatial awareness of what's around you or what you're listening to is gone, because you are listening to you for 1 minute and then you are watching Mike Tyson or somebody's reel on your mobile, and then you get lost totally. So whenever, my dear audience, if you have a question because of the current topic that you are discussing, please scream very loudly to interrupt us.
then I'll allow you to ask that question. But ask a question. Don't give gyan, because between us we have got a lot of gyan. That gyan we can always give you off the thing also. So whenever you have a question, now we are talking about direction. So if anybody has a question on direction, especially the younger filmmakers, can you just scream and ask that question? तुमसे ना हो पाएगा. Yes. Not loud enough, yeah? Yes. चलो और चिल्ला. हाँ, yes, आप पूछिए ना. Ask a question. ज्ञान मत देना, मैंने वार्निंग दे दिया. फिर पीछे ले जाके बहुत ज्ञान देंगे. So, hello, my name is Mustafiz Ahmed, and sir, respects, and the topic is the cradle of meaningful cinema. So, sir has mentioned that in the future generations we have new form of cinema, vertical cinema is also there. So, what is your opinion on vertical cinema, AI in cinema, and all this stuff that are evolving, and it is like being used in nowadays films and by many artists. So, what is your opinion on that? बेहतरीन क्वेश्चन. हाँ एकदम टॉपिकल है. AI is a good, very efficient librarian. That's it. As far as हमारा फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव और चीज़ों के लिए मेडिसिन में और लॉ में और वहाँ हो सकता है किसी को. वो क्या करेगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क है, तो वो इवेंचुअली फॉर्मूला ही देगा आपको. क्रिएट तो नहीं कर सकता है कभी. तो हम लोग खुश रहो, बचे रहो, अच्छा है जो होगा ये यहीं से निकलेगा दिल से. और दिल को AI बनाना, आर्टिफिशियल बनाना, बस यही है मेरा कहना. Thank you, sir. मैंने कुछ देर पहले एक AI से पूछा था. I asked ChatGPT, give me a very difficult technical question to ask a renowned film director of Indian cinema. तो ChatGPT ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो मैं क्वेश्चन पढ़ूं. अरे बाप रे, पढ़. ChatGPT पसंद नहीं है इसको. How do you balance the use of focal length and aperture to maintain both the visual intimacy of your subject and the narrative context of their environment, especially while working in unpredictable, low light conditions, without compromising the naturalism of the moment? क्या क्वेश्चन दिया? तुमसे ना हो पाएगा. मुझको क्वेश्चन याद ही नहीं है क्या बोला. ये मेरे कंसंट्रेशन लेवल से नहीं है, मतलब ये आपका बेसिकली फोकल लेंथ और अपर्चर को कैसे यूज करें, इन संक्षिप्त में मैं वो एक्टर और कैमरा और एक्टर के बीच में जो डिस्टेंस को मेंटेन करके मूव करो और ट्रैक करो. और बहुत सारा था, इंटीमेसी भी था उसमें लो लाइट भी है, क्योंकि लाइट भी आपका लो है, फिर भी आपको एक सर्टेन इंटीमेसी पकड़ना है. और उसके बाद लो लाइट भी है. आसाम में हो तो बारिश भी होगा. भाई साहब एक बताऊँ, ये काम मेरा नहीं है. मैं डायरेक्टर हूँ, ये सब मेरे जो कारीगर है ना उनका काम है. मैं बोलता हूँ ये चाहिए, वो करते हैं. Okay, anybody wants to scream? Yes, sir. Yes, please go ahead. Hello, Himanshu sir. Tirab here. जी जी. I am an aspiring filmmaker, yet to make my first film. I have a very basic and simple question for you. If you were to give me advice for making my first film as a director who doesn't have a producer, what will it be? पैसा निकालो कहीं से. कहीं से. हाँ, Jugaad. You mean jugaad, right? जुगाड़ करो पैसा और बना दो पिक्चर, सब हो जाएगा. कूदना पड़ेगा, पहली पिक्चर में तो कूदना पड़ेगा ही पड़ेगा. नेचुरली प्रोड्यूसर अगर नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी पिक्चर बहुत कमर्शियल नहीं होगी, थोड़ा नए अंदाज की फिल्म होगी, नए स्टोरी टेलिंग में कुछ नयापन होगा. वही है, वही करना चाहिए. और ये करने के लिए, पहली फिल्म बनाने के लिए तो एक अटेम्प्ट तो मारना ही पड़ेगा. कुछ करो, बैक बोरो स्टील, जस्ट मेक इट. Thank you, sir. कल निकलूंगा मैं.
ऑन ए कॉन्ट्रेरी मेरे पास माइक है सर, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बट यहाँ सामने ही बैठा हूँ बस वैसे। ये यहाँ का एमसी इधर ही बैठा हूँ। MC, हाँ, सर। तुमको तो चिल्लाना ही पड़ेगा। नहीं सर, ये माइक है इसलिए कम धीमी आवाज़ में भी बोल सकते हो। टिग्मान सर, ये एक सवाल है जो मोस्टली हम लोग यहाँ पे फेस करते हैं। जब भी हम कोई फिल्म का बजट बनाते हैं तो बहुत अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा आपने खुद बताया कि ये एक्सपेंसिव बिजनेस है, तो जब हम प्रोड्यूसर के पास जाते हैं उसका आधे से भी कम हो जाता है। तो आई एम श्योर ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, तो उस दौरान मतलब जो बजट इतना कम हो जाता है तो उस हिसाब से आप अपने लोकेशंस हो या प्रोडक्शन में कम कर देते हो, या फिर आप रिस्क लेके सबको मना के कैसे करते हो? हाउ डू यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? मतलब या तो अगर ऐसा प्रोड्यूसर है जिससे सीधे का आधा कर दो, तो ऐसे प्रोड्यूसर का काम ही नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं, उसका इम्तिहान हो गया और फेल हो गया उस इम्तिहान में, उसके साथ काम मत करो। दूसरा, अगर तुमको प्रोड्यूसर चाहिए, तुमको लगता है इसको मैं सेट कर लूंगा, तो और ही ज्यादा इन्फ्लेट करके बजट दो अगर उसको काटना है। फिर तीसरा, जैसे हमारे साथ हुआ था व्हेन वी वर मेकिंग पानसिंह तोमर, तो तब वो रिसेशन वाला टाइम आया था 2009 में जो हुआ था। तो मैंने सोचा था कि पानसिंह तोमर को मैं जो बीहड़ के जो डेकॉइट वाले सीक्वेंस है उसको एनामॉर्फिक शूट करके बड़ा एकदम सर्जियो लियोने वेस्टर्न की तरह, आपकी फिल्म की तरह, और जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है वो मैं 16 mm करूँगा, थोड़ा इजीली हैंडल होगा, रनिंग के शॉट्स ये होगा। तो रिसेशन हो गया, यूटीवी ने बजट काट दिया, तो फिर भी हमने किया, मतलब इरफान ने भी कम पैसे लिए, स्लैश हो गया, मैंने भी कम पैसे लिए, और पूरी पिक्चर फिर 16 mm पे ही बनाई हमने। बहुत बेहतरीन फिल्म है सर, फिर हाँ, तो वही तो लोग सूंघ लेते हैं पिक्चर की ना, नहीं तो सभी पिक्चर हिट हो जाती। सर वो टाइम पे 2 फिल्में आई थी, मुझे अभी भी याद है। एक था शायद करीना कपूर और उनका स्टार एक मैं और एक तू, ऐसा कुछ। उसी टाइम पे आपकी फिल्में लगी थी। मैं फोर्सफुली अपनी वाइफ को, नाउ माय वाइफ देन माय गर्लफ्रेंड, उनको जोर जबरदस्ती लेके गया, ये फिल्म एक बार देख लो, उसके बाद तुम जब भी जो भी बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। और थैंक यू फॉर गिफ्टिंग अस पानसिंह तोमर सर। उसके बाद से आज मेरा ही चलता है घर पे। थैंक यू। वाइफ का नाम क्या है? सुनैना। नाम लिख के बोलो यार, ऐसे थोड़ी होता माय वाइफ। हाँ, so for those of you who clapped like loudly when he said that look for another producer, दूसरा प्रोड्यूसर ढूंढ के देखो। वो जो आधा पैसा दे रहा है वो भी पैसा दे रहा है, चुपचाप वो आधा पैसा ले लो और उसमें कुछ जुगाड़ कर लो। ऐसा ऑप्शन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में मुश्किल है सर। आई एम ब्रिंगिंग देम टू रियलिटी, नॉट गेटिंग देम टू एक्साइटेड कि मतलब जोर से क्लैप करें, बाद में वो पैसा जो मिल रहा था वो भी नहीं मिला। जब पिक्चर बनाते हैं, जैसे स्पेशली बायोपिक्स, आपने बनाया पानसिंह तोमर। पानसिंह तोमर में हर पहलू को आपने हाउ ही बिकेम एथलीट, अ गुड मार्क्समैन इन द आर्मी एंड इट वाज वेल डन, reached his conclusion in the end. But we have seen certain films sometimes on a recent, I think 1 or 2 year old war movie, where there was very less war and more on the romantic side and this that. What happens to the thinking process then? मैं दूसरों के काम पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, उनका काम है। तो लेकिन बायोपिक्स में ज़्यादातर मुझको ये गाने वाने जो होते हैं, जैसे एक बार मैं बायोपिक पे काम कर रहा था डॉक्टर कुरियन की, अमूल का जिन्होंने किया, तो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर थी तो हैं वो, तो उन्होंने जब स्क्रिप्ट विप्ट हो गई, अच्छे से हो गई, मैं डॉक्टर कुरियन से मिला 2-3 बार, आनंद जा करके बहुत रिसर्च किया मैं, तो कहती है उसमें गाना डाल दो हस्बैंड में मतलब। अरे मैंने कहा डॉक्टर कुरियन गाना गाएंगे, मैंने पीछे छोड़ दिया, मैंने नहीं की पिक्चर। इवेंचुअली अभी कोई उस पर अब भी जाके कोई उस पर काम कर रहा है, ठीक है, पता नहीं गाना रखेंगे कि नहीं। तो इसलिए ये सब करना नहीं चाहिए बायोपिक्स में गाने वाने। हाँ, तो शायद मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था तो हाँ। हासिल में आते हैं वापस। You initially wanted Manoj Vajpayee, I think, if I'm not mistaken. Yeah. But Farhan was closer to you. He was your, Irfan was a great friend of yours. Then why did you go to Manoj Vajpayee first? I wanted to make my first film, वो मुझको बनानी ही थी, तो मैं सेल्फिश हो रहा था, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मनोज की सत्य आ चुकी थी,
सत्य आ चुकी थी, चल भी गई थी, मनोज का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर भी हुआ था। मुझे तो मनोज भी बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। बैंडिट क्वीन से हम लोग हैं साथ में उसके पहले से, थिएटर डेज से। तो मैंने कहा ये आ जाएगा मनोज तो मुझको प्रोड्यूसर मिल जाएगा। तो मैं गया उसके पास, घात करके एक फिल्म जिसकी शूटिंग कर रहा था, उसको मैंने सुनाई, उसको उस वक्त समझ में नहीं है, उसने बोला मैं विलन नहीं करूँगा। मैंने समझाया कि विलन उस तरह का नहीं है, बट ठीक है, उसको उस वक्त लग रहा होगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए, वो नहीं। फिर तो मेरा सेकंड ऑप्शन मैं इरफान के साथ ही करता हूँ, जो होगा देखिए। ये बात He was finally हाँ, जो होना था a fantastic choice. Absolutely. The performance in that is like thundering in every aspect. But he also said that he didn't want to play the villain. That's why, I guess, one of the reasons why. Who, Manoj? Yeah. Yeah. And why didn't you want to play a villain? Sorry? Why didn't you want to play the villain? वो अब जो भी फिल्म में साइन की तो सब में हीरो था वो, तो इसलिए गाने वाले भी गा रहा था। डांस करता है मैं, तो जोर से बोलो ना, क्या है ऐसे? आई हैव क्वेश्चन बोल के। हेलो सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी यू कीप मेकिंग फिल्म्स थ्रू आउट, एंड द क्वेश्चन इज दैट अभी आप अपने आप को कॉन्टेम्पोरराइज कैसे करते हो? बिकॉज नाउ पीपल नो यू, यू गो समवेयर, पीपल नो दैट दिस इज दिग्मांशु धूलिया कमिंग। तो अभी आप ऐसे यंग जनरेशन के ऊपर कैसे फिल्म बनाते हो? हाउ डू यू रिसर्च और हाउ डू यू गो अबाउट इट, द होल थिंकिंग प्रोसेस? कैसे उनके जैसे कैसे सोचते हो आप? यंग जनरेशन जैसे? हाँ, मतलब डेफिनेटली इफ यू हैव टू थिंक। यार ऑनेस्टली अभी जो एकदम, जैसे आई हैव अ डॉटर, शी इज 25 इयर्स ओल्ड, वो भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, उसने सृष्टि एक बैंगलोर में वहाँ से 4 साल का कोर्स किया। तो उसकी जनरेशन वालों की बात करूंगा मैं। हाँ, मुझे तो बहुत डाउटफुल लगता है ये जनरेशन के साथ। और मुझको ऐसा लगता है मेरी, अगर मैं मतलब हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो मैं बहुत लंबी इनिंग्स खेलूंगा। कंपटीशन है नहीं, बिल्कुल नहीं है कंपटीशन, बिकॉज ये यंग जनरेशन जो है ये भी अब फिल्मों की फिल्में बना रही है। एक जनरेशन टू जनरेशन, देखिए क्या हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था 47 में, तो लाहौर से भी लोग आए, लाहौर में भी फिल्म इंडस्ट्री थी, बंगाल में भी थी, न्यू थिएटर्स वाले सब आए, विमल रॉय सब लोग, सब बम्बई आए। अब ये सब लोग अपनी अपनी दुनिया के लोग थे, बम्बई के बाहर के लोग थे, हर तरह के अपने कल्चर की कहानियाँ, तमाम चीज़ें लेके आए, फिर उन्होंने सिनेमा बनाया जो बनाया। विमल रॉय के पास सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर, हाँ, नेशनल अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने बंदनी, सुजाता, मधुमती, बोबी गजोइन, इस तरह की फिल्में बनाई, सक्सेसफुल फिल्म बनाई। अब ये महबूब खान तो अनपढ़ थे, वो स्टेबल में घोड़े के नाल ठोकते थे, एक क्लास नहीं पढ़ी उन्होंने, और मदर इंडिया बनाई, औरत बनाई, अंदाज बनाई, के आसिफ मुगल आजम बनाई, जिन्होंने 5th क्लास पास, फेल भी होंगे शायद। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन अपनी दुनिया की कहानियां लेके आए थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लोग बॉम्बे में बस गए, फिर इनके बच्चे हुए, तो उन्होंने से बॉम्बे के अलावा कुछ देखा नहीं, या तो पापा के साथ सिर्फ कश्मीर में शूटिंग देखी, या छुट्टियों में न्यूयॉर्क, लंदन देखा, तो उन्होंने दुनिया, हिंदुस्तान देखा नहीं। फिर उन्होंने फिल्मों की फिल्में बनानी, मतलब फिल्में ऐसी बनती ना, इसी को कहते हैं फिल्मों की फिल्में। अब फिर काफी सालों तक ये सब चलता रहा। फिर 2000 में हमारी जमात के लोग आए, नवदीप बैठा है, मैं हूँ, इम्तियाज है, सुजीत है, अनुराग कश्यप है, विशाल भारद्वाज है, ये सब जो फिल्म मेकर्स हैं। हम लोग भी बॉम्बे के नहीं है, सब बाहर से आए। हमने कहा मैं बिमल रॉय हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि हम अपनी दुनिया देख कर आए थे, वो एक्सपीरियंस लेके आए थे। अब हमारे ये जो बच्चे हैं, इन्होंने बॉम्बे के अलावा वही घूम रही चाहिए, तो उससे पता नहीं हमारी गलती होगी क्या होगी, हमने तो बहुत कोशिश की यार। तो लेकिन ये जनरेशन जो है, तो मुझको लगता है इस जनरेशन को थोड़ा और समझना होगा, देखना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, तो वो एक्सपीरियंस मुझे कम दिखता है। इसलिए नवदीप इज अ गुड बॉस। तो पर हम ये क्यों सोचें कि फिल्म मेकर सिर्फ बॉम्बे से आएंगे? We are not dependent on Bombay. not now. Now there are kids from all over Assam. तो वही तो, बॉम्बे आना भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ सबको, बॉम्बे हमें बिल्कुल ना आइए, आप लोग अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। अब तो इक्विपमेंट भी सब मिल जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, और डिजिटल के आने से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी बहुत हुआ है।
तो अपने आप लोग अपनी ज़मीन पर रहिए, बॉम्बे तो आना बिल्कुल नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं आप। So is direction an art, or do you need what you are saying कि आपको चाहिए कि एक mix हो, आप ज़मीन से जुड़े हो, then you will be able to tell better stories, or do you need to go to a film school, go through all that सीढ़ी चढ़ के आके, only then you will be able to make a good movie, not नहीं, फिल्म स्कूल से कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी कहानियाँ कहिए, अपने परिवेश को समझिए, अपनी राजनीति को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए, उससे कहानियाँ बनाइए और कहानी कह दीजिए। मैं शेखर कपूर का असिस्टेंट रहा हूँ। शेखर कपूर ने अपनी पहली पिक्चर मासूम बनाई थी, उनको कुछ पता ही नहीं था क्या होता है कैमरा, क्या शॉट होता है, उनको कुछ नहीं मालूम था। उनको एक सिंपल कहानी कहनी थी, कह दी, बना दी मासूम उन्होंने, क्या फिल्म बनाई है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इश्क करना सीख ले नासिक, नासिक जिन शायर है जिन्होंने शेर लिखा है कि इश्क करना सीख ले नासिक, इल्म से शायरी नहीं आती। समझा कि ऐसे ही क्लैपिंग करा। ये तो बहुत आसान शेर है, इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है। You'll have to shout, na? Yeah. That was a very polite one, but okay. Yeah. Thank you, sir. So, I've been wondering, like in earlier days, there used to be theater. Theater was the visual storytelling. Then came cinema. So now I am observing the visual storytelling has shifted from big screen to OTT, and then like a smaller screen like reels and stuff like that. So do you think like if in our generation like this is another shift is happening here, like is cinema will become like something else? Is the how like I'm wondering about the future here. अरे नहीं यार, ओपनहाइमर बनाई ना, देखी कि नहीं ओपनहाइमर, तब बस। So cinema will stay there, right? और क्या। Okay, sir. Thank you. Yeah, I have a mic. okay. So थोड़ा आपका process of collaboration with your DP or an editor, आप share कर पाएंगे, आप कैसे काम करते हैं उनके साथ, कितना closely, how do you share your feedback while working on a film? Very closely, हमें DP तो बहुत ही should be like a brother, मैं उसके हो नहीं सकता। और क्योंकि वो जो इलाका है, मतलब जो टेक्निकल कैमरा, मैंने कभी उसको ज़्यादा, मुझको लेंसिंग का सेंस है, मुझे कैमरा कहाँ रखना है, मूवमेंट कैमरा का क्या है, वो सब मैं बताता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझको ज्ञान नहीं, मुझे आता नहीं है, और वो आना चाहिए भी नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। कैमरामैन का काम है, करेगा, बट बहुत ही अच्छा रिश्ता होना चाहिए कैमरामैन का। अगर मुझे लगता है कि ऐसा 2 बार हुआ है मेरे साथ कि मेरी जमी नहीं कैमरामैन के साथ, और मैंने कैमरामैन चेंज किया। पान सिंह तोमर में हुआ एक बार, साइवी गैंगस्टर में हुआ, आई हैड टू चेंज माई कैमरामैन मिडवे। और एडिटर तो मैं, मतलब एडिटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो प्रोसेस मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सच में मुझे एडिटिंग बहुत बोरिंग लगता है। मैं उस वाइल एडिटिंग में 1-2 किताबें पढ़ लेता हूँ बैठे बैठे, वो हमेशा से मुझे थोड़ा सा टीडियस काम लगा है। तो दोनों के दोनों टेक्नीशियन आपके एकदम दोस्त होने चाहिए, यार होने चाहिए, और आपकी बात माने। ऐसा नॉर्थ ईस्ट वाला ब्रदर मत बन जाना, तीनों मिल के रात को पार्टी कर रहा और सुबह उठा ही नहीं फिल्म के लिए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब it has to be a nice working relationship. So we've asked about the director. I just want to dwell in, about his life a little bit, because from where one of the questions came and he answered about being close to the roots. You are from Allahabad. You know the city, grew up there, saw films there, and learned so much from the city. So Hasil, I guess, is set in that city. So you also started from your roots. How important was the city? How important was the culture? How important was the language for you? I'm fortunate कि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, बिकॉज ये तो मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि no other city in India except Calcutta can boast of such a legacy like इलाहाबाद। वो कोई है ही नहीं, कहीं है ही नहीं।
तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था, मैं बहुत ही अच्छे इवॉल्व और लिबरेटेड कल्चरल माहौल में रहा। मेरे घर वाले बहुत पिक्चर देखते थे तो मुझे साथ में ले जाते थे, मुझे बचपन से पिक्चर का शौक है, छोटे से। मेरे 2 बड़े भाई हैं, एज डिफरेंस ज़्यादा है, 8-9 साल का, तो वो लोग जो करते थे मैं भी करता, वो लोग थिएटर करते थे तो मैं भी थिएटर करता, वो म्यूज़िक करते थे मैं भी म्यूज़िक करता, उनकी देख देख में मैं चला हूँ। तो फॉर्चुनेटली मुझको घर वालों ने इनकरेज किया और मैं ड्रामा स्कूल आ गया। बट उस शहर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा, मैं उस शहर का आभारी हूँ। And he also had a band when you were in college. And what was the band called and what kind of songs did you sing? The band was called the Paranoids. Paranoids. एंड उस वक्त तो हम सब लोग कवर्स ही बजाते थे, तो वही बीटल्स, CCR, यही सब बजाते थे। Have you ever seen the rain? नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है, बहुत। हर कारोके में यही गाना गाते हैं, शायद यही गाते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। You are the vocalist? Yes, vocalist and the other guitarist. Yes. And I asked him to play the guitar, बोला नॉर्थ ईस्ट में तो गिटार कभी नहीं छूंगा क्योंकि यहाँ जी जी बिल्कुल, गली गली में गिटारिस्ट और रॉक सिंगर निकलते हैं। और बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे इलाहाबाद में थे एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत आते थे, तो वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न बैंड्स थे, बाप रे बाप, बहुत अच्छे थे। And before this, you talked about Ishq. Personal question. It's important for the audience to know. No, it's important or not? नहीं लग रहा है यार important. तो पहला इश्क कब हुआ? क्या एज में हुआ? मैं 8th क्लास में था और वो 7th में थी। आज वो मेरी बीवी है। और 30 साल के ऊपर, 30-35 साल हो गया हमारी शादी। मैंने बहुत जंग में 22 साल का था, मैंने शादी कर ली थी। 22 साल? हाँ यार। तो फिल्म कैसे बनाया उसके बाद? तभी तो बनी। No, but usually, practically, शादी करने के बाद you get locked ना, you are not able to take risks that you are talking about ना, that you are not able to jump in the fire because you have a family to look after. You have to, somehow get a stable job, so to say. We managed. किया हमने। दिल्ली में एक कमरे में रहे, बालकनी को किचन बनाया, 4 साल ऐसे रहे, तो उस तरह की, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं था स्ट्रगल कर रहे थे, मजा ही आ रहा था। सारे दोस्त ऐसे ही रह रहे थे, तो हम भी ऐसे ही रह रहे थे। And you were still studying at that point? When I married, yes, I was in the 3rd year, final 3rd year में तो निकलने वाला था, 4-5 महीने बाकी थे ड्रामा स्कूल से। हाँ। So that reflects in your work also, that you like to jump in and not waste time too much. Yeah. I had good friends. मेरे जेब में 40 ही रुपए थे, सारे दोस्तों ने पैसा वैसा जुटा के सब कुछ करा के शादी कराई हमारी। तो मैं एक्चुअली बहुत यारबाज आदमी हूँ, मैं दोस्त चाहिए मुझे हमेशा आसपास। तो हम भी दोस्त बिल्कुल, आप मिले हैं, आपसे तो देखिए कितना दूर तक आते हैं। देखेंगे, हम भी देखेंगे। Yesterday, while we were sitting and chatting, there was a very interesting comment that came from him regarding cinema and particularly Iranian cinema. How the filmmakers there, despite all the censorship, despite all the challenges before them, are able to convey the message. In our country, we are facing a special, strange situation. So, how can our filmmakers be able to speak out boldly without saying much? मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बना तो रहे लोग फिल्म में, कौन रोक रहा है? नहीं, पर हर्ट तो बहुत लोग हो रहे हैं। अब वो अलग बात है, हर्ट जो हो रहे हैं वो सिचुएशन अलग है, बिकॉज बिफोर द योर मैटर गोज टू कोर्ट, उसके पहले आपको सड़क के बगल में जो सारे सुप्रीम कोर्ट्स खुले हैं वही आपको कर देंगे। ये प्रॉब्लम तो मैं मानता हूँ,
लेकिन एज फार एज सेंसरशिप की बात आप कर रहे हैं, कौन सी ऐसी पिक्चर है पिछले 5-6-10 सालों में जिसको जो उस तरह से रोकी गई है? अगर होंगी तो एक आध कहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई फिल्म को रोका गया हो। शायद मैं ये क्वेश्चन न्यूज़ के बारे में पूछ रहा था, फिल्म बोल दिया। नहीं देखिए, सेंसरशिप की जो प्रॉब्लम है ना, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से है। आपको मैं किस्सा बताता हूँ। एक पिक्चर थी 1961 में रिलीज हुई थी, 62 में, मेरी फेवरेट फिल्म है गंगा जमुना, दिलीप कुमार की। तो गंगा जमुना जब सेंसर के पास गई तो सेंसर ने रोक दी पिक्चर। क्यों? क्योंकि उसमें एंड में दिलीप कुमार को जब गोली लगती है, मरते रहे, तो दिलीप कुमार बोलते हैं हे राम। तो उन्होंने कहा ये तो आप बोल नहीं सकते। कहते क्यों? कहते बिकॉज आप हिंदू नहीं है। कहता मेरा कैरेक्टर तो हिंदू है, बट रोक दी पिक्चर। दिलीप कुमार हैड टू गो टू जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने पिक्चर देखी, उन्होंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल पास करो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू 5-6 पिक्चरें और भी जो रोकी हुई थी, जवाहरलाल ने कहा ये भी पास करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग कहेंगे मैंने तुम्हारा पर्सनल फेवर किया। तो वो सारी पिक्चरें फिर पास हुई। तो सेंसरशिप की प्रॉब्लम, उस लोग तो कहीं भी बैठे रहते हैं ना। So we have about 9 minutes more. If any one of you have any more questions, please do feel free to ask. थोड़ा और जोर से बोलिए। जी हेलो। आपका आवाज बुलंद है। चिल्ला के पूछिए। Hello, sir. My name is Sugandha. I work as an AD in Bombay. I have 2 questions actually. First one is when we see a lot of good films made by great filmmakers, we love a lot of styles. So when we are making our own film, how do we decide on the visual language and grammar of the film, and in a way that it does not look copy but looks inspired? That's my first question. इसी पे रुके रहे थोड़ी देर। मुझे लगता है जो कंटेंट होता है ना, वही आपके क्राफ्ट को डिसाइड करता है। आप उल्टा कब चल रही है, ऐसे नहीं चला जाता है। आपका जो टेक्स्ट है, जो जिसको आपने लिखा है, वही डिसाइड करेगा कि आपका किस तरह की विजुअल क्वालिटी है, किस तरह का विजुअल ईडियम आप इसको देंगे, है ना। तो आप उल्टा मत चलिए कि विजुअली कैसे दिखेगी फिर ये होगा, नहीं। आपका कंटेंट आपको खुद बता देगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखनी चाहिए पिक्चर। Okay, sir, and the second question I have in mind is how do you think relationships impact what you write or what you want to show? Relationships? मतलब किसके साथ? किसके साथ? Overall, all the relationships that you have, a director or a writer has. You mean personal relationship, like Yeah, relationship with your wife, with your friends? Yes, yes. इसका कोई मतलब नहीं होता। आदमी बहुत ज्यादा बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन पिक्चर अच्छी बना देगा वो। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग थे। पिकासो को देखिए, मतलब बुरा नहीं था पिकासो, बट 3-4 थी साथ में। ब्रेस्ट, बर्तोल्ट ब्रेस्ट had multiple relationships, but genius. Okay, that's all, sir. Thank you. Question. Yeah. Just off the top of your head, if you could just say movies that as a filmmaker or as an actor or as a writer that you should watch. I can hear him. He's loud enough. Thanks. Sorry? As a filmmaker or a writer or an actor, movies that you should watch off the top of your head. If you can think of any that you can recommend to us. There are many. I have a list. I can mail it to you. Because मैं उस लिस्ट को फिर मैं अपडेट भी करता रहता हूँ। बहुत आते हैं असिस्टेंट, पूछते हैं। मेरी बेटियाँ भी पूछती क्या देखें, मैं उनको दे देता हूँ। लेकिन मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, उसका नाम है वो वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका। वो उस पिक्चर में सब कुछ है। ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड। नहीं, और 4 बोल दीजिए, अच्छा रील बनेगा।
बाकी सब तो ही है, बाकी नहीं नहीं, 4 बोल दीजिए, अच्छा रील बनेगा, सही बोलो, कल वायरल जाएगा। वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, गंगा जमुना। Sir, do you have letterbox? लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स क्या होता है? वो ऐप नहीं यार मेरे पास है, यही सब है पिक्चर है, बहुत सारी पिक्चर है, बट वंस अपॉन टाइम अमेरिका टॉप्स द लिस्ट। सिनेमा पाराडिसो, हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है, बड़ी मूविंग फिल्म है। रील नहीं बनेगा। आई ट्राई, सॉरी। यस, वी कैन सी यू। हेलो या सर, आपने ड्रामा स्कूल से आपका ग्रेजुएशन किया है एंड यू शिफ्टेड टू फिल्म्स। सो ऑल्दो वी नो ड्रामा एंड फिल्म्स आर इक्वेशन ऑफ द सेम लीनियर इक्वेशन, बट इट्स टेक्निकली इट इज डिफरेंट। सो आपका ड्रामा स्कूल का जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस कैसे काम आया आपके फिल्म में? ब्लॉकिंग, जब आप सीन को ब्लॉक करते हैं और कैमरा रहता है, भले ही आपने लेंस का भी लगा, आपके सामने एक्टर है, 2 हैं, अब उसमें सीन होगा ना, कोई अंदर आएगा, कोई उठ के जाएगा, और फिर आपका ये थर्ड आई जो है, ये उससे आप किस तरह से अपने एक्टर को कैमरा के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके ब्लॉक करेंगे, कौन उठ के आएगा, कोई एकदम फोरफ्रंट पे आ जाएगा, कोई बैकग्राउंड पे रहेगा। ये जो सेंस ऑफ ब्लॉकिंग है, ये मुझको थिएटर में मेरी बहुत अच्छी है, बिकॉज ऑफ थिएटर। Nice to know. Thank you. Sir, I have a question. यस। Hello sir, myself Shivanesh Badi. Previously in Bollywood we saw that there was a lot of adaptation of novelists such as Shamaresh Mujumdar or Bimal Mitro, Said Bibi Golam. In present days, the adaptations come from South India. So, are we totally rejecting vernacular literature as a source of film content? That's a very, very good question. Very good question. In fact, I'm organizing a festival in Allahabad on the 20th, 21st, 22nd. उसमें यही सवाल पे बात है। Unfortunately, ये बहुत बड़ा भय, except कुछ बहुत कम novels हैं जिनमें हमारे कहा, तो शरदचंद्र देवदास है, परिणीता है, प्रेमचंद की गोदान है, और गबन है, बहुत कम फिल्में हैं, पिंजर है, ऐसी फिल्में हैं जो कि लिटरेचर से उठाई गई हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और इफ यू कंपेयर हॉलीवुड, 85% ऑफ द फिल्म्स आर मेड ऑन नॉवेल्स, और शुरू से। तो ये तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने लिटरेचर की तरफ नज़र उठा के नहीं देखते। आप लोग नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में तो इतना अच्छा लिटरेचर, स्पेशली असम में लिखा जाता है। आप लोग उन कहानियों को बिल्कुल ये अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, ये साउथ की फिल्में या अंग्रेज़ी फिल्मों की कॉपी, अगर आप अपने लिटरेचर पे एक बार ध्यान देंगे, सबको देना चाहिए। एक्चुअली आप यंग फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ी बात मैं जो कह सकता हूँ वो यही है कि लिटरेचर पे जाना पड़ेगा यार, प्लीज़ जाओ, प्लीज़। मैं अभी उदय प्रकाश की कहानी पे फिल्म बनाने वाला हूँ, दिल्ली की दीवार, तो वो भी बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग उदय प्रकाश को, जो हिंदी वाले हैं, वो आज के बहुत ही बड़े, पिछले 40 सालों में मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा हिंदी में कोई राइटर हुआ। बहुत विजुअली पिक्चर, कहानी पढ़ेंगे आपको पिक्चर दिखती है कहानी। तो आप लोग लिटरेचर पे ज़रूर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए ज़रूर। Is it because the filmmakers are becoming lazy or अनपढ़ हैं, लिटरेचर पढ़ना नहीं जानते? ये आज की बात नहीं है, तो हमारे तो बहुत 60s के से तो शुरू ही हो गया था, कोई लिटरेचर में काम नहीं करना है। तो आज की जनरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं है, हमारी हिंदी फिल्मों के साथ ये प्रॉब्लम रही है। आप ये बात सही कह रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये तो है। लेकिन अनपढ़, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया के आसिफ का और महबूब साहब का, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करने का उनका अंदर एक मादा था कि मैं कहाँ पे, किस वक्त, ये तारीख पे खड़ा हूं हिंदुस्तान की धरती पे और आसपास क्या हो रहा है, उसको लेकर वो सजग थे, अवेयर थे।
हम तो कैफे कॉफी डे में या किसी कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की धरती पे कहाँ है? तो वो अगर नहीं हो सकते तो लिटरेचर ही पढ़ लो यार. Unpad, not in that sense, but culturally, you are unpad. Literature, you are unpad. That's what unpad is. Any more questions? I have a last question. Yeah. फिर से मैं तुमको नहीं मिलेगा यार. तुमको जितना तुम बाद में पूछ रहे हो. सर का एक रिक्वेस्ट था टिग्मांशु सर से पूछने के लिए कि समझो खुद क्यों नहीं पूछ लेते यार तुम. हाँ प्लीज पूछ लो. Sir, can you share some of your best moments while working with Irfan sir? यार वो मैं शेयर ऐसे नहीं करना चाहता. बड़े पर्सनल मोमेंट्स हैं, क्योंकि मैं मोमेंट्स की नुमाइश नहीं कर सकता. सॉरी. लेकिन सर क्या सीखना चाहिए, मतलब आपको क्या लगा, क्या मिला, क्या सीखना चाहिए नए एक्टरों को? नए एक्टरों को? हाँ, इरफान खान के साथ काम करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये बात नए जनरेशन के एक्टर को सीखना चाहिए? कि इरफान को देख के एक्टिंग मत करो यार. आजकल के मैं सारे एक्टर को ये देख रहा हूँ इरफान की नकल करते हैं सब. तो देख देख के एक्टिंग करते हैं सारे के सारे. जिंदगी को समझो, महसूस करो, तब फिर एक्टिंग करो. या Hello sir, myself Hector Hingo Harman. So I want to ask you that I came from a theatre background. My whole family like do theatre from childhood. मैं मतलब स्कूल बाद में गया हूँ, पहले थिएटर किया है मैंने. So अभी मैं फिल्म मेकिंग में हूँ. मैं I'm studying cinematography. So I want to ask you that acting में आपके like what do you think, like acting and directing together is it a good idea for you? Like आप एक्टिंग भी करते हो, आप डायरेक्शन भी करते हो. मुझे टुगेदर तो बिल्कुल नहीं. एक बार मैंने की थी बिकॉज कोई एक्टर मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे करनी पड़ी. इट वाज अ टेरिबल एक्सपीरियंस. कूद के जा रहा था मॉनिटर पे, क्या शॉट कैसे हुआ, ये हुआ वो अलग कर सकते हैं. पता नहीं ये देवानंद और ये सब मनोज कुमार लोग कैसे करते थे दोनों चीजें एक साथ, बट मुझसे तो नहीं होती. जो हेडेक रहता है डायरेक्टर पे, वो एक्टिंग में वो पूरा निकालना होता है. तो आप थोड़ा सा अगर लाइक एक्सप्लेन कर सकते? नहीं, मैं कोई कर पाए तो कर पाए, मुझसे नहीं होती. तो मैं इसका तुमको उसकी चाबी भी नहीं बता सकता कि ये कैसे हो. आई हैव नो आइडिया. मैं तो नहीं करूँगा कभी. So, मतलब आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है आपका? डायरेक्शन में. डेफिनेटली. बट लाइक हाउ डू यू फील, लाइक आप दोनों जगह पे, दोनों सिचुएशन पे कैसे मतलब अपने आप को? एक्टिंग इज द इजीएस्ट थिंग टू डू इन फिल्म मेकिंग. इजीएस्ट. कुछ नहीं करना होता. हम कोई बेंजामिन बटन तो बना नहीं रहे हिंदुस्तान में, या कोई रेजिंग बुल तो बना नहीं रहा है. हम लोग वही बना रहे हैं जो बना रहे हैं. तुमको पता है क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं. एक्टिंग एक्टर को पैसा मिलता है मेकअप मैन में वेट करने का, बस. तो बेसिकली इनसे ना हो पाएगा, दोनों नहीं होता. My final question, and it's connected to the Northeast in a way. In lot of your interviews, आपने कहा है कि एक अच्छे एक्टर को अपना लैंग्वेज में तगड़ा पकड़ होना चाहिए. तो अगर उसको ले ले तो half of the actors who are going from Northeast to Bombay to become actors, वो तो पहले ही मतलब आप डिस्क्वालीफाई कर दिए उनको. उनको अपनी लैंग्वेज में करना चाहिए. और अगर नहीं तो फिर वैसे ही किरदार मिलेंगे ना कि एक नॉर्थ ईस्ट का है जो कि बॉम्बे में या किसी नॉर्थ कहीं और शहर में आया है, तो ऐसे किरदार तो कैरेक्टर तो बहुत कम हो गए ही नहीं. तो सब लोग डैनी साहब तो नहीं हो पाते. तो उनको अपने रीजन में काम करना चाहिए. नहीं तो एक दो एक्टर्स तो आए भी हैं, मैंने देखा है बीच में बहुत पॉपुलर हुए थे नॉर्थ ईस्ट के एक दो एक्टर्स, बट उनकी तादाद हमेशा कम ही रहेगी. उसका तो कोई कुछ किया नहीं जा सकता. एक डैनी जैसा दूसरा आना पड़ेगा. With that, we have completely run out of our 60 minutes. I wish we could have talked more, because if I have to go into his acting, that will be 60 minutes more. उतना time नहीं है. With that, Tigmanshu sir, thank you so much once again for coming to the Northeast. नहीं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का. मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you. Once again, I need a bigger round of applause and hooting also to thank him. And television में हम लोग बोलते थे, ladies and gentlemen, thank you so much for watching our show. You know, hope you come back again. आजकल आसान हो गया है. Please like, share, subscribe, follow BVFF
on Instagram and all those other things that you like. Thank you. Thank you, Tigmanshu sir. Thank you, Paljor sir. एक बार जोरदार ताली इनके लिए और to everyone present here. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.